हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर के अंदर दो टाइप के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ के अंदर एक्टिविटी है। तो जब टू वेक्टर्स डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें दोनों चीज दिखाया जाता है। एक्चुअली टू और थ्री मोर वेक्टर्स, हाउ दे आर interacting to each other and how they are influencing to each other, we can calculate from this dot and cross product. Product means it's a product multiplication of two vectors or three vectors. तो ऐसा हो सकता है जब टू वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को इन्फ्लुएंस जब कर रहा है, द आउटपुट कुड बी ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी and other could be two or three more vectors while interact each other, they could have generate the vector itself. तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और जो स्केलर बनाएगा दो वेक्टर इंटरेक्ट करके जो फाइनल क्वांटिटी की रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डॉट प्रोडक्ट लाइक यू सी, फोर्स इज ए वेक्टर। One force, if you apply it on some body or some object and it moves in a certain distance, that is displacement. So the product of this force into displacement, the output is work and it is a scalar quantity. Work is the amount of energy dissipated और कितना हमने उसके ऊपर मेहनत किया, that is the work. So that is will be example of scalar quantity or dot product. And cross product, the example of cross product would be, generally it is coming on the under rotational motion. So torque, for example, is a torque. Suppose if you push with some force with a lever and you are trying to screw your wedge, wood part or anything in wooden door, you want to fix it. तो जो स्पैनर या आप कोई टॉर्क रेंज लेके उसको टाइट करते हैं, तो यू आर पुटिंग द फोर्स अराउंड द सर्कल, अराउंड द सर्कल where the lever or the spanner is the radius, and that is also a vector distance from the applied force and the work done. And then the screw, then you try to like this, so you try to fix it. The screw will goes down or goes up as per the direction of your force applied. So let's start how the calculation could happen in case of dot product. अब डॉट प्रोडक्ट में देखिए, जैसे कि आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, द आउटपुट विल बी स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, व्हाट वी पुट लाइक दिस, सपोज हियर इज ए block, there is a block or box, whatever. Then somebody is pushing this force. Suppose this is A, okay, but the block moves in this direction. So displacement, suppose it happened a displacement of D on the application of force F. तो फोर्स F के ऊपर now the man or whatever the force, how much the work it has done to move this block. तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए दो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हैपन लाइक दिस. So as per the vector addition and subtraction we have did it in the earlier session, you can refer the earlier video also. So हम क्या करेंगे, देखिए एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है और दूसरा वेक्टर जो है ऐसे काम कर रहा है, ठीक है. अब ये दोनों की हम इसकी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस क्या है वो प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी F इंटू पी जो है वो हम निकालना चाहेंगे. F डॉट पी इसको बोलता है डॉट प्रोडक्ट, नेम इटसेल्फ पुटिंग द डॉट, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट विल बी हियर, दिस इज द डॉट, दिस इज द फिगर डॉट, वी डिनोट इट एज अ डॉट एंड दिस विल बी फिगर एज क्रॉस. अब देखिए ए वेक्टर को अब जब मैं अलाइन करूंगा, हमें पता है कि वेक्टर को हमने क्या करना होता है कि पैरेलली शिफ्टिंग कर सकते हैं एज पर द रूल, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन अराउंड दिस रूल. तो हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा था तो दूसरा वेक्टर इसको अगर शिफ्ट करें तो इट्स हैव अ सर्टेन एंगल
and this is the angle maybe. We will put the horizontal one, this one, like this, and we are applied with the force of theta. So angle of pressing the force, applying the force is the horizontal level theta. So this is the force and this is the displacement. We have did it, and these are all vectors and making the angle of theta. Now you see, अब देखिए यहाँ पे जो कैच है, what is the actual things having behind the scene is actually क्या हो रहा है. अब हमने फोर्स तो अप्लाई कर दिया, but displacement is happening in this direction. So though it is convenient, we are not pushing parallelly as per our height of this, man जो उसको पुश कर रहा है, जो भी हाइट है उसके हाइट के ऊपर डिपेंड करके वो पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन द एंगल विल बी मैच इन दैट वे ओनली. तो किस एंगल में पुश कर रहा है एज पर द कन्वीनियंस ऑफ दिस पर्सन. तो ऐसे अगर पुश करता है तो जो एंगल है यहाँ पे देखिए, जो पर्सन जो है इसको पुश कर रहा है, तो यहाँ पे द होल अमाउंट ऑफ फोर्स ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ए. तो क्या कैन वी प्रेडिक्ट दैट, कैन वी हैव सम कैलकुलेशन जो टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, whether it is working directly on this displacement, whether it is fully responsible to make this block move? Suppose not. Now we will see. कैसे? अब देखिए ये फोर्स एक एंगल में काम कर रहा है, तो इस फोर्स की अगर मैं दो एक्सिस लेता हूँ, सपोज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर आपने ये देखा है, ये दो प्रोसेस में कर सकता हूँ. मैंने दोनों प्रोसेस ऑल्टरनेटिव मेथड और एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी दिखा दिया आपको नॉर्मल पैरेललोग्राम रूल के अंदर. तो इस केस में हम कर सकते हैं या तो इसको ट्रायंगल बना लें, या तो इसको ट्रायंगल बना लें. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर लें, ये फोर्स, सॉरी, this is displacement, then this is which one, F, and this is D, and if you have a parallelogram or triangle like this, the resultant will be like this. Okay. So in this case what is happening actually, अब देखिए ये फोर्स जो है इसके अगर कंपोनेंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इसकी कंपोनेंट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो इस कंपोनेंट के आप देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे जो है एफ का एक कंपोनेंट एफ वाई काम करेगा, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है. और डी यहाँ पे और इस तरह जो काम करेगा, इस तरह कितना काम करेगा एफ का, बिकॉज दिस इज थीटा एंगल मेकिंग टू द हॉरिजॉन्टल, तो दिस विल बी एफ एक्स एंड दिस इज नथिंग बट द एफ cos theta, correct, and this is f of sin theta. ठीक है. इसके मतलब आप एक चीज देखिए कि इसकी जो टोटल फोर्स है, the force, the effort we have done this one, it is just not actually working or responsible for the movement of or displacement of the block. तो कुछ ही पार्ट जो है इस ब्लॉक के ऊपर इस फोर्स का कंपोनेंट काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, इट इज ए प्रोजेक्शन. यानी इसका कुछ अगर हम यहाँ से लाइट फोकस करते हैं, इफ यू पुट द लाइट देन इट इज द समवेयर दिस एफेक्ट्स विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, द प्रोजेक्शन यानी लाइट प्रोजेक्शन, हम जो लाइट में पढ़ते हैं प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसकी जो प्रोजेक्शन है दिस इज द एफेक्ट्स कंपोनेंट. हम इसको बोलेंगे जो एफेक्ट्स की कंपोनेंट है इसके ऊपर कितना प्रोजेक्शन हुआ है ना एफेक्ट्स कंपोनेंट. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन के अंदर एफेक्ट्स इज वर्किंग ओनली एफेक्ट्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वेक्टर इज वर्किंग एंड अदर इज वर्किंग ऑन अदरवाइज. अब इसका डायरेक्शन ऐसा है, थीटा एंगल है, तो इधर काम कर रहा है, यानी इसको लॉक कर रहा है, पुशिंग कर रहा है, इसको ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के आर्क के साथ पुश कर रहा है. दिस इज एफेक्ट्स एंड दिस इज एफ वाई. ठीक है. ओके. नाउ so what is the work done here? So force is this much long effects, now displacement is d, so we know work is how much? Work is force into displacement. In our case it is
force is Fx here and displacement is this one. And work is scalar quantity, so we put dot 1. And what is this? Fx is nothing but the F force magnitude, then cos theta part, and again the displacement d. So this is nothing but the F d dot cos theta, you can say like this. So this is the work. ठीक है, अब समझ में आ गया क्या डॉट प्रोडक्ट है? दो वेक्टर आपस में कैसे इंटरेक्ट करें, अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल में काम करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कितना उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक चीज और देखेंगे कि मान लीजिए दो वेक्टर है. अब ये तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको make it understand what is the dot product. Now any two vector when interact each other and it is in the two dimensional space, what we are actually 2D motion के अंदर हमने दिखाया 2D के अंदर. Now this could be on 3D में भी हो सकता है. मान लो दो फोर्स x y z के ऊपर काम कर रहा है, x y z के ऊपर काम कर रहा है. This is x, this is y, this is z. One force is working like this. Suppose this is P1, okay, and this coordinate is x1, y1, z1, correct? This is the vector along this direction, this direction, this direction. This is the P1 vector. And some other, it is in the space. I am talking it is in the space 3 dimension. It is not actually in the 2D plane, maybe somewhere in between. This is hanging on this space. दूसरा हो सकता है ऐसा कोई होगा, उसकी मान लीजिए P2 है एंड इसकी कोऑर्डिनेट है x2 वेक्टर, y2 वेक्टर एंड z2 वेक्टर. हाइलाइट इट मीन कि इसकी जो कंपोनेंट है, द कोऑर्डिनेट इटसेल्फ व्हाट इज सेम, द कंपोनेंट इन x डायरेक्शन ऑफ द P2, यानी इस इधर हो गया P2 x2, दिस विल बी P2 x2, यानी P1 की केस में अगर वेक्टर का हम बोलते हैं तो दिस विल बी P1 x1 वेक्टर, देन P2 x2 वेक्टर, देन P1 x2, देन P1 x3. ऐसे समझ सकते हैं ना, द कंपोनेंट इज वर्किंग अलोंग द 3 डायरेक्शन, x1 y1 एंड देन z1. इसके जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में x px ले लिया हमने, this is py1 and pz1 ऐसे लिख सकते हैं. So this is P2 will be similarly P2 x2, P2 y2 and P2 z2 like this. So 3 वेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं. अब देखिए अगर ऐसे दो फोर्स इंटरेक्ट कर रहा है and it is also producing, suppose this one only 3 dimensional space में. So ये एग्जांपल में 3 डायमेंशन में हम ले सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऐसा एक फोर्स है, हम तो प्लेन के ऊपर फोर्स दिखा दिया, हो सकता है फोर्स ऐसे काम कर रहा है स्पेस के ऊपर, तो एक्चुअली 3D में ही काम करता है. हमने 2D के लिए भी दिखाया गया, कोई 2D में जो मान लो इसमें प्लेन था फिर मैंने ऐसे दिया, तो दिस इज द 2D मोशन में, और 3D इज 3 एक्सिस. तो इसमें इस जो दो फोर्स इंटरेक्ट कर रहा है, इस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. देखिए अब एक्चुअली हमने अब क्या करना है कि ये दोनों आपस में अगर एंगल है, सपोज वी कंसीडर द एंगल बिटवीन दिस मे बी, और ये एंगल के साथ ये ऐसे काम कर रहा है, दोनों के एंगल बीच में मान लो थीटा है. ठीक है, थीटा है, दोनों एंगल थीटा के ऊपर काम कर रहा है, दोनों वेक्टर के एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स थीटा. पैरेलल तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो मीट करेगा. सो दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो अब हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे ना लेके हम ऐसे इसको पैरेलल ले सकते हैं, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी एंड दे आर मेकिंग वर्किंग ऑफ थीटा. एंड अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया, एक P1 हो गया आपका यहाँ पे P1, दिस इज P2 is shifted, this is P2
एंड P2 शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे P1 था, राइट। अब P1 की कोऑर्डिनेट अपने पास था वेक्टर x1, y1 एंड z1, ओके, एंड दिस इज x2, y2 एंड z2, ठीक है। अब इसको जो है दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इफ दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा स्पेस के अंदर। देखिए इसको हम इस तरह की भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि P2, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P2 इज नथिंग बट यू नो x2 I कैप वैल्यू, मॉड ऑफ वैल्यू, दिस वेक्टर का वैल्यू हो गया, देन y2 j कैप, देन z2 k कैप। यानी इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा हम जनरली क्या बताते हैं, इसको आई कैप में दिखाते हैं, इसको जे कैप में दिखाते हैं इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को, और इसको के कैप में दिखाते हैं, ठीक है। तो यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है, लेट अस टेक द मैग्नीट्यूड, दिस इज x2 एंड दिस इज डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर P1 दिस विल बी x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। इसको हम इस तरह की एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइदर बोलेगा कोऑर्डिनेट है तो इसको इस तरह की एक्सप्रेस करो, या तो ये बोलेगा कि भाई ये दो वेक्टर है जिसकी कोऑर्डिनेट 3D स्पेस में ये है, ठीक है, जिसके वेक्टर की कोऑर्डिनेट ये है, यानी इक्वेशन ये है, यानी कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2 एंड x1 y1 z1, बोथ साइड, मतलब इधर से इधर बता सकते हैं या इधर से इधर आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब now you see this will be now what is happening here, understand little bit। P2 के केस में यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रोजेक्शन दिखाएंगे, यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, फोर्स के जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था, दिस इज फोर्स अप्लाइड एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड दिस इज कितना हो गया, मैं इसमें एक डॉट एक cos थीटा काम कर दिया, ठीक है। ऐसे इसके अंदर ये P2 कितना काम कर रहा है, तो दिस विल बी आल्सो P2 cos थीटा, दिस विल बी P1 डॉट P2 cos थीटा, दिस विल जनरेट, क्योंकि P2 का ओनली cos थीटा कंपोनेंट विल बी वर्किंग ओवर हियर, इसकी इधर sin थीटा काम कर देगा, P2 sin थीटा, दिस विल बी P2 sin थीटा एंड दिस विल बी P2 cos थीटा, दिस वन P2 cos थीटा, इधर काम करेगा P2 cos थीटा, ठीक है। वैल्यू ले लेते हैं, डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, अब देखिए ये स्पेस में तो है क्योंकि तीनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो P2 का दोनों का, इसमें भी cos थीटा होगा, इसमें भी cos थीटा होगा, इसमें भी cos थीटा। नाउ ये भी 3D में है, इसकी भी स्पेस जो है 3D में डिफाइन है, इसके मतलब तीन कोऑर्डिनेट, यानी कभी इसके अमाउंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन का इस फोर्स इसके ऊपर कितना काम करेगा, इसका फोर्स इसके ऊपर कितना काम करेगा, इसका फोर्स इतना डायरेक्शन में काम करेगा। सिमिलरली इसका लाइक दिस ऑल विल बी वर्किंग हियर। सो इसको कैसे करते हैं, यानी P2 वेक्टर डॉट P2, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखते हैं ना, इसको हम लिखते हैं, देखिए हमने इक्वेशन ऐसे बना लिया, सो दिस विल बी x1 P1 is x1 I cap, then y1 j cap plus z1 k cap whole multiply into P2 x2 I cap y2 j cap then z2 k cap, ठीक है। इतना सारे आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कोई x में काम कर रहा है, कोई z में कितना काम कर रहा है, फिर सारे का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, सबका अलग अलग, ये कंपोनेंट उधर कितना काम कर रहा है, वो कंपोनेंट का, इसका px जो कंपोनेंट था, px2 जो हमने ये बोला था कि ये कंपोनेंट एक्चुअली इस तरफ कितना काम कर रहा है, ये कंपोनेंट इस तरफ कितना काम कर रहा है, ये कंपोनेंट किस तरह काम कर रहा है, ऐसे इस कंपोनेंट इस तरफ कितना काम कर रहा है, ये इस तरफ कितना काम कर रहा है, ये इस तरफ कितना काम कर रहा है, सारे को इंटरेक्शन लेना पड़ेगा एंड ऑल थ्री डायरेक्शन फाइनली टू रीच द रिजल्टेंट वेक्टर की जो
वर्क आउटपुट आएगा. So in this case, what we'll do is इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए आइदर आप एल्जेब्रिकली इसको करो x1 दिस वन, एल्जेब्रिकली हम करेंगे तो p1 p2 जो है दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट कुड बी x1 x2 x1 x2 and this is I cap and I cap. ठीक है, x1 x2 डॉट I1 I cap. Then this will be मतलब इसके साथ इसका then is x1 y1 x1 y2 then I cap, this is j cap, like this. Then similarly this is x1 z1 into I cap k cap. ओके, प्लस सिमिलरली ऐसा इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा y1 x2 j cap I cap. Similarly y1 y2 this will be j cap plus third का z direction वाला it will interact like z1 x2 k cap I cap plus z1 y2 k cap j cap प्लस यहाँ पे एक इक्वेशन रहता है दिस वन z1 z2 k cap, इधर y1 y2 हो गया, यहाँ हो गया x y1 x2 y1 y2, फिर एक रहता है y1 j2 k cap j cap k cap j cap k cap. ठीक है, ये तो एल्जेब्रिक हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज नाउ देखिए, जो दो वेक्टर है हमने बोला एक वेक्टर दूसरे वेक्टर px1, सपोज दिस इज px1 x1, जब ये दोनों वेक्टर काम करेगा, दोनों यूनिट वेक्टर लेट इज उसको कंफ्यूजन छोड़ दीजिए. यूनिट वेक्टर हमने इधर बोला कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है ये y ये z ये x डायरेक्शन. ठीक है, अब यूनिट वेक्टर में जो मान लीजिए इधर मैंने दिखाया आई कैप है और इधर दिखाया जे कैप, यूनिट वेक्टर हम डिनोट करते हैं, और इधर दिखाया के कैप है. ठीक है, के कैप है. अब ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नाउ डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारा क्या था कि दोनों इसकी अगर एंगल बीच में, ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दिस इज 90 डिग्री, आई कैप एंड जे कैप, दिस इज 90 डिग्री, वाई डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन, इट इज आई कैप यूनिट वैल्यू यूनिट वेक्टर एंड दिस इज जे कैप. तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज क्या हो जाएगा ना, आई कैप मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, दिस इज 1 ओनली, ये कुछ नहीं है, ये 1 है, दिस इज 1 यूनिट वेक्टर है ना, और इनटू cos कितना हो जाएगा बिटवीन एंगल 90 डिग्री, सो cos 90 डिग्री. एंड क्या हो जाएगा वो cos 90 डिग्री, दिस इज नथिंग बट द 0, cos 90 0. सो ये दोनों यूनिट वेक्टर की जो आपस में इंटरेक्शन है, यानी इधर वाला कोई वेक्टर काम कर रहा है तो 90 डिग्री में कैसे काम करेगा, तो जीरो कंपोनेंट ही आएगा ना, इधर काम कर रहा है ऊपर से ऊपर ही जाएगा, एंगल होगा तो देन इट कैन बी 0. सो दिस इज द 0 डिग्री. सो जो इंटरचेंज ऑफ दिस वन, सो दिस विल बी ऑल 0. सिमिलरली दिस विल बी जे कैप एंड के कैप. जे कैप अगर के कैप है, यहाँ पे मान लो के कैप है, अब जे और के के अंदर दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, इट इज नॉट शोइंग इन दिस वन बट इट इज 90 डिग्री ना, तीन जो एक्सिस है दे आर मेकिंग ईच अदर 90 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो cos 90, so दिस इज ऑल्सो 0. ठीक है, वैसा आपका हो जाएगा के कैप एंड आई कैप मल्टीप्लिकेशन, दिस विल बी ऑल्सो 0 सेम. ठीक है, यानी ये दोनों जो है जो क्रॉस है, दिस विल बी 0. सो ये भी 0, ये भी 0, this value is also 0, this is j cap, it will remain same, this is also 0, and this is also 0, no same direction, so it is parallel. अगर same direction है मतलब उतना ही काम कर रहा है, same value काम कर रहा है, otherwise a cross direction it will be 0.
So only remaining is now you see this is again I cap also same direction. So we can put this is a देखिए दो डायरेक्शन को मॉडिफाई करते इट इज ए यूनिट वैल्यू नो डायरेक्शन बिकॉज डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है. सो ओनली क्वांटिटी विल बी हियर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. सो तीन वेक्टर के अगर डायरेक्शन में होगा तो दिस विल बी ओनली x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दे विल गिव यू द अल्टीमेट वर्क स्केलर वर्क और वी कैन से दिस आर द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, यानी हम अगर ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मैंने बोला कि तीन ऐसे लिया है, ये समझ में आया, हम एग्जांपल कर लेते हैं फिर दोबारा. ठीक है, दो वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट किया तो स्केलर क्वांटिटी आउटपुट होने वाला है, यानी 3D में दो फोर्स काम कर रहा है और इट इज ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हम जैसे एफडी कॉस्टे का दिखाया था आपको, ऐसे ही हम सोचे 3D में लेकिन फोर्स है, पहले 2D में सोच के हमने बनाया था, 3D में अगर है और जिसकी वेक्टर कोऑर्डिनेट दिस है तो कैसे इंटरेक्ट करेगा अल्टीमेटली फार्मूला में x1 x2 y1 y2 z1 z2 है. ठीक है, फिर एग्जांपल के दर के अपन अगर ले लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ऐसा होता है, मान लो दो फोर्स का, दिस इज 5 I कैप 3 J कैप एंड 2 K कैप. ठीक है, एक फोर्स था P2 और P1 फोर्स में मान लीजिए हमारे पास में था यानी 2 एनीथिंग ले लो, -1 I कैप देन 2 J कैप एंड प्लस 3 K कैप. यानी ये दोनों फोर्स जो है कौन सी स्पेस में कहाँ पे खड़ा होकर एक्टिंग कर रहा है, किस डायरेक्शन में, वो हमने ले ली. अब इसी की जगह में आप देखिए, आप मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, दोनों फोर्स हम मिल गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इसके अगर कोऑर्डिनेट हम लिखें, देखिए P2 की इसमें कोऑर्डिनेट हमने क्या कर लिया 5 3 2, this is the coordinate and this is x1 is the -1 2 3, यानी वेक्टर कोऑर्डिनेट में ऐसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3D कोऑर्डिनेट. तो इसी केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x1 x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ओनली 5 into -1 then y1 y2, this will be nothing but the 2 into 3 then z1 z2, this is nothing but the again 3 into 2. So this is resultant will be -5 plus 6 plus 6. So this is 7. 7 what? 7 न्यूटन मीटर और जूल यूनिट से वर्क यूनिट जो है, अगर फोर्स हम लेते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट की कोऑर्डिनेट लेते हैं, इस डायरेक्शन का इस फोर्स वाला, इस वेक्टर वाला फोर्स एक स्पेस में खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसकी कोऑर्डिनेट 0 से नाउ इट मूव टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ x y z इन ए 3D प्लेन, उसका वर्क डन कितना है, नन कैन से दिस इज 7 न्यूटन ऑफ जूल लाइक दिस. तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एग्जांपल. ठीक है, अब हम मेरे ख्याल से यू अंडरस्टैंड दिस वन नाउ, डॉट प्रोडक्ट, हाउ इट इज द डॉट प्रोडक्ट इज वर्किंग. सो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन की पैरेललनेस ऑफ टू वेक्टर्स. एक्चुअली क्या दिखा रहा है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की परछाइयां, शैडो, एलिवेशन, वो कितना उसके अंदर पैरेलली काम कर रहा है, कितने उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाउ इट इज एग्रावेटिंग दिस वन, और हाउ इट कैन अकोमोडेटिंग इटसेल्फ टू डू द वर्क. उसी तरह यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ कितना समानता है, पैरेललता है, पैरेललनेस है, दे आर showing each other and the component how it is how much component is working one another parallelly, because जब दो वेक्टर एक साथ में काम करेंगे, जब दो वेक्टर एक साथ में काम करें, they will only adding. अगर ऑपोजिट में काम करता है, 180 में काम करता है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, अगर 90 में काम करता है तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं आएगा. ये मान लीजिए एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो वर्क डन कैसे है. इसीलिए फिजिक्स में बोला गया था ना कि कुली अगर सर पे कोई वो बोझ उठा के चले तो वो फिजिक्स उसको वर्क डन नहीं मानता है एगेंस्ट द ग्रेविटी. वो मे भी खुद का जो वर्किंग है इट कुड बी, बट ड्यू टू दिस लिफ्टिंग इज वेट, तो उसको हम बोलेंगे भैया ये कुछ काम नहीं किया है पर फिजिक्स, बिकॉज दिस फोर्स इज रिएक्शन फोर्स, वेट इज हेड weight carrying on head, so it is working on downwards mg, and he is pushing the reaction, earth is pushing the reaction on the topward, and the person is moving in the horizontal direction, so these both are 90 degree, so work is not done as per the physics. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब तभी वर्क होगा
जब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी फोर्स दूसरे के डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, वही है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। नाउ विल मूव टू द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बोलता है? क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा है कि भाई दो वेक्टर ऐसा है जो आपस में अगर इंटरेक्ट करें, दे विल मेक इज ए वेक्टर अगेन। वो दोनों इंटरेक्ट करके जो इंपैक्ट डालेगा, जो आउटपुट इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट आएगा, दैट प्रोडक्ट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी बट इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। So this will call as a cross product and we mark it as a cross की तरह हम उसको सिग्निफाई करते हैं। अब ये हम थोड़ा सा आपको रोटेशनल मोशन में जाके और डीपली पढ़ेंगे। इसको हम वेक्टर की कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। वेक्टर रिलेटेड जितना कंसेप्ट है इसको पुश करेंगे। जो रोटेशनल मोशन वाला जब पढ़ेंगे तो उसको अरिथमेटिकली और न्यूमेरिकली उसको रोटेशनल की बेस में अंडरस्टैंड करेंगे। तो नाउ वेक्टर के कंसेप्ट में उसको अंडरस्टैंड करें। मान लीजिए टॉर्क है, मेनली जो एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए टॉर्क एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए टाउ लाइक दिस इज कॉल्ड टाउ। तो ये आप देखे होंगे प्रैक्टिकली अपना एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक तो स्क्रू मोशन बोला, स्क्रू मोशन जो होता है, आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं स्पिनर से, ऐसे परपेंडिकुलरली कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, या नट को टाइट कर रहे हैं, नट को टाइट कर रहे हैं उनके स्पिनर, और समटाइम्स डिगिंग योर ट्यूब ऑयल, पीपल आर डिगिंग द ट्यूब अर्लियर डेज कि एक यहाँ पे बोर ऑयल चल रहा है, बोर ऑयल को पानी निकालने के टाइम में इनिशियली जो पाइप डालते हैं हाथ के अंदर, सो पीपल फिक्स इट इन ए लीवर, देन दे स्टार्ट मूविंग अलोंग दिस वन, ऐसे ऐसे करके लेके घुमाते रहता हूँ। और इसमें एक स्क्रू टाइप का नीचे बना रहता था, ठीक है, लोहे का, एंड इट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, डिगिंग डाउन देन पाइप जॉइनिंग डाउन। So, these are the practical example, this one tau or torque, ठीक है। तो टॉर्क के केस में हमने क्या देखा कि टॉर्क के केस में आप देखिए, टॉर्क के केस में मान लीजिए मैं अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। नाउ दिस इज ए स्क्रू, वी वांट टू put it inside on a this wooden ब्लॉक के अंदर हम उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। और इसको आप इसकी जो हेड है नाउ इसको जो हेड है हम इसको आप स्पैनर में या हैमर से घुमा, ठीक है, स्पैनर से या हैमर से घुमा, सॉरी हैमर बोल रहा हूँ, स्क्रू से, ठीक है। माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, ठीक है। मान लीजिए आप मैंने इसको स्पैनर से रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए स्पैनर जब घुमाऊंगा, आइदर दिस बोल्ट विल इन स्क्रू विल गो डाउन और गोज अप। तो इस केस में अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है दिस इज, अगर अब रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा है तो दिस विल बी इट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम F into D, बिकॉज इट इज नॉट, थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। एंगुलर अभी रोटेशनल मोशन आपने पढ़ा नहीं होगा। इट इज ए फल्क्रम पॉइंट एंड इफ यू पुट द फोर्स दिस डायरेक्शन एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है, स्टार्ट रोटेटिंग। और इसको हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल जो फोर्स है, या अगर यहाँ पे पुश करते हो, यहाँ पे पुश करते हो, दोनों घूमता नहीं है। थोड़ा सा अगर इधर कर दिया आपने, फिर देखो थोड़ा घूमने लग गया। अगर और ज्यादा दूर गए तो ज्यादा घूमने लगेगा। तो एक्चुअली द फोर्स, द रोटेशनल फोर्स, inertia you can say, this will depending upon this amount of force, this is amount of force, this is amount of force, and this one the distance from fulcrum। तो ये दोनों को डिपेंड करके ये दोनों का मोमेंटम हम सोचते हैं, ठीक है। सो F और D इज द टोटल, ये दोनों मिलके एंगुलर मोमेंटम को बनाता है, ठीक है। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम बनाएगा ये, और इसकी जो रेडियस यानी स्पैनर लेंथ है, सपोज दिस इज D, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दोनों को जब घुमा रहा हूं तो उसके अंदर एक ट्विस्टिंग मोशन स्टार्ट हो रहा है, इट इज ट्विस्टिंग मोशन, इट्स जस्ट पुलिंग दिस वन लाइक दिस और लाइक दिस। सो एक ट्विस्टिंग मोशन इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, द एनर्जी आई एम पुशिंग दिस वे और दैट वे, इट इज ट्रांसफरिंग हियर देन अगेन ट्रांसफरिंग टू दिस एंड इट इज बाउंड टू रोटेट। फिर ये रोटेट होने का कोशिश कर रहा है, जैसे रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, मोशन का ट्रांसफर भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ। ये आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में जब इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे देन यू विल कम टू नो दिस वन अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये फोर्स जो है, ये एफडी जो टॉर्क है, ये यहाँ पे देखिए, नाउ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। ठीक है, स्क्रू मोशन में अब देख लीजिए फोर्स ये इस तरह की काम कर रहा है, राइट। इस तरह जब काम कर रहा है तो यहाँ पे दो चीज है, ये फोर्स को आप रिल्यूट कर लीजिए, ये फोर्स को आप रिल्यूट करें तो आपको, अगर मैं इस तरह के डायरेक्शन में एक लेता हूं और इसकी एक डायरेक्शन लेता हूं 90 डिग्री में लाइक दिस, सो इसको हम रिल्यूट कर सकते हैं। यानी ये जो फोर्स है, जो ट्रांसफर हमारे यहाँ से फोर्स ट्रांसफर होके आया है, एक्चुअली फोर्स यहाँ पे एफ ट्रांसफर नहीं हुआ, एक इंटू डी ट्रांसफर हुआ, ये ध्यान रखना, दिस इज रोटेशन मोशन। ठीक है, तो ये जो है सॉरी एफ इंटू क्रॉस डी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, वेक्टर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेक्टर जनरेट। तो एफ डी जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर थीटा एंगल में अगर स्क्रू की एंगल है, जो कटिंग एंगल है, दिस इज द स्क्रू एंगल बोलते हैं हम, इसकी जो एंगल अगर थीटा है तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या काम करेगा, दिस इज आल्सो थीटा, दैट मींस दिस इज आल्सो थीटा, तो दिस की एफ की यहाँ पे एफ sin थीटा कंपोनेंट काम करेगा और यहाँ पे एफ cos थीटा कंपोनेंट। तो एफ sin थीटा विल पुश दिस वुडन ब्लॉक साइड, इधर से लगा होगा, पुश करेगा और वो बेचारा स्पेस बना के अंदर चला जाएगा। ये मोशन ट्रांसफर भी बता दिया। सो ये जो टॉर्क है, सो दिस एफ डी इंटू टॉर्क है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों है, इसकी जो एक्सप्रेशन है, हम इसको बोलेंगे कितना काम कर रहा है, यानी एक, अब इसको रोटेशनल मोशन की एक्चुअल पिक्चर में समझे। सपोज दिस इज एफ and this is center and this is D, again it is a vector and this is also vector force. So ये जो अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसफर होगा, टाउ जो जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, दिस विल बी F क्रॉस D and this will be tau and this will be tau and this will be into sin थीटा। ठीक है, sin थीटा अगर वैल्यू ले लेते हैं तो sin थीटा बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे इसकी जो टॉर्क है दिस विल बी एफ इंटू एफ क्रॉस डी, ऐसा बोलेंगे, या अगर टाउ की वैल्यू लेंगे तो sin थीटा, जो डायरेक्शन इज टेकन केयर ऑफ दिस वन sin थीटा एंड एफ डी sin थीटा। अब यहाँ पे एक चीज जो गैर करने वाली बात है, नाउ सी इमेजिन द रियल पिक्चर, जब मैं स्पेनर लिया एंड वी आर पुशिंग दिस वन, इट इज ए प्लेन, द टू इंटरएक्टिंग वेक्टर, इट इज ऑलरेडी इन ए प्लेन, मान लीजिए। अब जो थर्ड वन है, देखिए दिस इज एक्स, नाउ आई एम पुशिंग दिस वन स्पेनर एक्स, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन माय सेल्फ, मैंने पकड़ लिया ये एक्स है, तो दिस विल बी वाई, नाउ ये वाई डायरेक्शन होंगे, बट मूवमेंट मोशन जनरेटेड अल्टीमेटली the force transmitted or torque transmitted, रोटेशन में टॉर्क बोलेंगे, फोर्स नहीं बोलेंगे, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड दिस इज ऑन द, देखिए तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे, तीन परपेंडिकुलर, मैंने इसको इधर पुश किया था स्पेनर को, स्पेनर ऐसे घूमने की कोशिश किया था और स्क्रू नीचे जाना था, तो क्या हो गया, अल्टीमेटली 3D में चला गया, यानी 390 डिग्री में आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी क्या हो गया, एक फोर्स हमने इधर दिया, चलो इसको ऐसे कर लो, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा इसी के साथ ही। ये यहाँ पे फोर्स दिया वाई डायरेक्शन में, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, नाउ द मोशन विल जनरेट इन डी डायरेक्शन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस विल बी जेड डायरेक्शन मोशन जनरेट होगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन वाला मोशन जनरेट होगा।
यानी क्या हो गया, 3 परपेंडिकुलर में काम करेगा। 2 परपेंडिकुलर में काम करने वाला या थीटा एंगल में काम करने वाला, उसकी एलिवेशन जो है, उसकी जो वर्क आउटपुट है दैट विल बी ऑन द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, क्या बोला फिर बोला, इसको और सिंप्लीफाई करके हम ड्राइंग कर लें। ऐसे करते हैं कि भाई यानी x और y में इंटरेक्ट करने वाला, अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं, i कैप एंड j कैप विल इंटरेक्ट इच अदर, i क्रॉस j in case of torque, it will produce the tau in direction of k cap, in direction of k cap, और इसीलिए इसको बोलते हैं कि i क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k और i मॉड j मॉड इंटू साइन थीटा। यानी ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे, इस फोर्स के साथ, इसको अगर प्लेन में मान लो, इफ इट इज ए प्लेन, राइट, दिस वन इज प्लेन, इफ इट इज ए प्लेन, तो जेट जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं इस तरह के काम करेगा, यानी इस प्लेन के ऊपर काम करेगा। जेट जो है, ये ड्राइंग 3D दिखाने के लिए, यानी उसके परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन विल वर्क ऑन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा। दिस इज के का डायरेक्शन। वेरी क्लियर। अब हम देखते हैं अगर 3 फोर्स या 2 फोर्स इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह के काम आएगा। अब मैंने 2 फोर्स स्पेस में अगेन ले लिए कि दोनों फोर्स स्पेस में है, और P1 वेक्टर इस केस में हम ले लें, कुछ भी ले लें कि 5i कैप, मान लो 2 फोर्स ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम भी लिखा था, ये P1 है, दिस इज P2 है, दिस इज x1 y1 z1, x1 y1 z1 vector, and this is x2 y2 and z2 vector। ठीक है, तो ये दोनों जो वेक्टर है, मान लीजिए 5i कैप and 3k कैप j कैप and -2k कैप। ठीक है, and P2 is मान लो 2i कैप then j कैप and k कैप, मान लीजिए ऐसा 3 वेक्टर है। अब इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फाइंड P2 क्रॉस प्रोडक्ट में कितना आएगा टॉर्क, अगर ऐसे होता है तो कितना उसकी क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसकी जो फोर्स है साइन थीटा में काम करेगा। साइन थीटा में क्यों बोला, कॉस थीटा क्यों नहीं बोला, ये परपेंडिकुलर में काम कर रहा है। साइन इज रिलेटेड टू परपेंडिकुलर, रिमेंबर लाइक दिस। हमने लास्ट टाइम क्या बोला था, उसकी परछाइयां इसमें डॉट प्रोडक्ट के अंदर, कि वो कितना उसके कंपोनेंट काम कर रहा है। इस केस में हम बोल रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर, जब टॉर्क की परपेंडिकुलर में जनरेट हो रहा है, तो दिस इज एक्चुअली साइन थीटा कंपोनेंट की दोनों के साइन थीटा कितना काम कर रहा है। सो दिस इज द आई जे कैप एंड साइन थीटा, तो दोनों को जो है साइन थीटा, तो इस केस में भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारे को, यानी दिस मल्टीप्लाई इनटू दिस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा P1 P2 देन साइन थीटा। और यू कैन से डायरेक्टली कैसे हो रहा है, नहीं ये आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल को 3j कैप -2k कैप होल इनटू दिस वन 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं जनरली आपको एल्जेब्रिकली दिखा रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट से भी निकलता है, वो मैं लास्ट में करके दिखा दूंगा कि डिटरमिनेंट कैसे बनता है। डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको डिटरमिनेंट मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी नहीं बताया, उसको स्किप करके हमने आगे तो डिटरमिनेंट इसी चीज को, इस जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लिकेशन में
हम इसको दिखा सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई जे देन के, एंड डिटरमिनेंट में हम लिखेंगे आई में यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है, देन दिस इज 3 है, दिस इज -2 है, दिस इज 2 है, दिस इज 1 है, दिस इज 1। और इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मैं बाद में दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब एलजेब्रा की केस में हमने जैसे बनाया था यहाँ पे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको डिटरमिनेंट दिखा सके, आई जे के एंड दिस इज 5, इसको रीराइट कर रहा हूँ, नथिंग दिस will show how in determinant form it is easier to calculate, multiplication, the permutation combination very quick। मैथ में आपको पता होगा, यहाँ पे थोड़ी हम बता देंगे। तो इस केस में अगर अलजेब्रिकली भी मल्टीप्लाई करते हो देन दिस अगेन दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो 5i into 2i, then 5i, then 5i, अब इसमें क्रॉस ना लिख के डॉट ही लिख दो बिकॉज दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओनली, क्रॉस लिख के आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। सो दिस इज जे कैप 5 into j cap, then plus 5i cap into k cap, then plus 3j cap into 3j cap dot 2i cap, and plus 3j cap into k cap, and this is minus 2k cap into 2i cap, then minus 2k cap into j cap, and this is minus 2 again, minus 2k cap into k cap, ये टोटल आ गया। यानी देखिए बार बार वही कह रहा हूँ, ये इजी है डिटरमिनेंट, देखो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना, डिटरमिनेंट में इजी, यानी पहले इससे किया फिर इससे किया फिर इससे किया, वैसे इससे किया इससे किया इससे किया, लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसकी जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम सम अप कर लेंगे। अब यहां से जो चीज बोलने वाला था, आप देखिए साइन थीटा, जब दोनों फोर्स 90 डिग्री में काम कर रहे हैं तो साइन 90 इज ओके, यानी दो फोर्स, अगेन आई एम टेलिंग टॉर्क, जब 90 डिग्री में दे आर वर्किंग ईच अदर, और लाइक दिस, यू कैन से लाइक दिस, टॉर्क हमने ऐसे काम कर रहा था, एक टॉर्क यहाँ ये डायमीटर है और इधर में फोर्स कर रहा था और स्क्रू डाउन इधर जा रहा था, ठीक है। अब इसकी जो है देखिए 90 डिग्री में दोनों काम कर रहा है, इन केस ऑफ 90 डिग्री, ओके, इन केस ऑफ 90 डिग्री इट इज जनरेटिंग वन मोशन ऑफ 90 डिग्री टू द प्लेन, ठीक है, 10 डिग्री पर जैसे साइन थीटा। सो इसके दोनों के अगर साइन थीटा 90 है देन इट इज परफेक्टली जनरेटिंग 90 डिग्री विद दिस वन। अगर ये दोनों की एंगल अब मैं कर देता हूं पैरेलल है, क्या वो फोर्स कोई जनरेट करेगा? नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब स्पैनर आपका ऐसा है, और यू आर आल्सो पुशिंग द फोर्स सेम डायरेक्शन, स्पैनर भी ऐसा था, यानी स्पैनर भी ऐसा और साइड घुसा रहे हो, ऐसे घुसा रहे हो, तो क्या उसमें स्क्रू कैसे घूमेगा? नहीं घूमेगा, स्क्रू को तो टॉर्क मोशन चाहिए, सो यू हैव टू जनरेट द टॉर्क इन अ ट्विस्टिंग मोशन। सो आपको इसकी परपेंडिकुलर या पर्टिकुलर कोई एंगल में करना पड़ेगा, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री करने से दोनों नहीं होगा। यानी जब sin 0 0 when sin theta, sin 0 और sin 180 is equal to 0, ठीक है। यानी दो वेक्टर जब आपस में एक दूसरे की पैरेलल करेंगे, यानी i इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ना, i डॉट क्रॉस i इक्वल टू 0, बिकॉज आपस में इनकी एंगल कितना है, sin 0 है, सो दिस इज 0 एंड j कैप इनटू j कैप आल्सो 0, j कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू 0 एंड k कैप इनटू k कैप इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में था इंटरचेंज, तो cos थीटा था, cos 90 0 था, तो i क्रॉस i कैप एंड j कैप इक्वल टू 0, j कैप इंटू k कैप इक्वल टू 0 था, एंड k कैप इंटू i कैप इसका भी 0 था, ये डॉट प्रोडक्ट में था। क्रॉस प्रोडक्ट केस में ये, ठीक है। अब देखिए इसके मतलब हमारे क्या हो गया कि दोनों की इंटरचेंज, दिस इज 0, ठीक है, जो सिमिलर इंटरेक्शन है i j i k, दिस इज j i j k और k k, यहाँ पे एक 0 और होगा,
और यहाँ पे वेक्टर हमने एक और कहीं छोड़ दिया लगता है। नाउ दिस इज आई कैप, जे कैप, जे कैप, के कैप, और एक रह जाएगा आपका आई आई हो गया, ए के हो गया, जे जे रहेगा। जे जे मतलब 3 3 3 3 3 के एंड 3 के, 3 एंड 1, 3 एंड 1, ठीक है, 3 एंड 1। दिस इज 1 जे आई 5 into 2, दिस इज, ठीक है, ठीक है। ऐसा करके एक और आएगा यहाँ पे क्वांटिटी होगा, दिस विल बी 2 2 2 into -2 into 1, so this will be, यहाँ पे क्वांटिटी हमारा छूट गया है। दिस इज 3 जे कैप एंड दिस इज 1 into डॉट into और into y 1 जे कैप एक और होगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी देखिए, जे जे क्वांटिटी जो है ये भी जीरो हो जाएगा। सो जितने जे जे कंपोनेंट है जीरो हो जाएगा। जो आपस के क्रॉस 90 डिग्री वाला इंटरेक्शन है, जो 90 डिग्री वाला इंटरेक्शन है, दिस एंड दिस इंटरेक्शन, दिस विल ओनली गिव यू द रिजल्ट। सो दिस विल बी, और इस कितना हो जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, अब नाउ दिस इज आई कैप इनटू जे कैप, दिस विल गिव यू के कैप, दिस विल गिव यू के कैप, ठीक है। यानी आपस में क्या करेंगे, इसका आई जे एंड के सर्कुलर ऑर्डर में, यानी आई जे के मल्टीप्लाई होगा के होगा, के साथ आई मल्टीप्लाई होगा तो जे होगा, आई जे के आई विल बी जे, और आई जे इक्वल टू विल बी के सर्कुलर ऑर्डर। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, उल्टा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये जनरेट करेगा 10, और दिस विल बी, इसमें क्यों मैंने प्रोडक्ट ले रहा हूं क्या डायरेक्शन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैव द डायरेक्शन, इसके अंदर डायरेक्शन है, इसके अंदर डायरेक्शन है, इसलिए मेरे को वेक्टर को लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अल्टीमेटली जो आउटपुट है दैट इज आल्सो क्रॉस वेक्टर, दैट इज आल्सो वेक्टर। सो वी नीड टू ऐड दिस वन, द डायरेक्शन के फाइनल आउटपुट, ठीक है। इसकी जो आउटपुट आएगा, एंड दिस विल बी, बाकी सारे जो क्रॉस था वो क्रॉस सारे जीरो हो जाएंगे, उनको देखा हमने। इसकी जो है, सॉरी, दिस विल बिकम जीरो, दिस अदर वन विल बी हियर ओनली, sorry, ij, this is ij, so this is 5, ij is the k cap, and this is 5, then ik it will be, j cap, ik, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ik ऑपोजिट, so this is j cap माइनस नेगेटिव, ठीक है, इस तरह की होगा। और इसमें करके आपको आएगा 6, it is just 6, and ji, it is also negative, so this is ji will be minus k, and this will be 3 jk, this is positive, so this is I cap, and this is minus negative, then this is 2 ki, so it is positive, and it 2 j cap, and this will be minus 2 kj negative, so this is minus I cap। तो इसको आप सम अप करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम सम अप करके लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया 5 के कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस प्लस 2 आई कैप, ठीक है। अब इसको सम अप कर लीजिए, आई कितना है, ये 2 आई, दिस 3 आई, सो 5 आई कैप, एंड के कितना हो गया, -6 दिस वन, सो माइनस के कैप, एंड जे कितना हो गया, -7 जे कैप। सो दिस इज द फाइनल वेक्टर आउटपुट, दिस वन फाइनल वेक्टर आउटपुट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट इस तरह की होगा कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी टॉर्क, दिस थ्रू मोशन विल बी दिस, ठीक है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा सा रूल है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक डायरेक्शनल रूल है, यानी ये देखिए, ये जो मैंने दिया आपको आई जे के, ठीक है, यानी अगर हम इसके अंदर राइट हैंड स्क्रू लेते हैं और अब उसको ऐसे पकड़ा है राइट हैंड स्क्रू में, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन, यानी कोई डायरेक्शन अगर कोई फोर्स अगर K2I जा रहा है, K2I जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हम मूव करा रहे हैं उसको, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ऐसे हो गया था,
ये फोर्स इधर से काम कर रहा है, ये फोर्स इधर से काम कर रहा है, तो इसको घुमा के ऐसे ले जा रहा है, दिस फोर्स इंटरेक्टिंग टू दिस मान लो कैसे लिया, एक फोर्स ऐसे लिया और इधर से ऐसे ट्विस्टिंग करने की कोशिश किया, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है, अब जो स्क्रू है वो कैसे मोशन करेगा, ये राइट हैंड स्क्रू का हम ले लेते हैं। तो ये अगर हम ऐसे करते हैं, नाउ अगर मैं इसे ट्विस्ट करूंगा तो इस विल बी, द स्क्रू विल बी मूव अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड थंब रूल, ठीक है। इसको हमने इधर से ऐसे ले रहा है, इधर से ऐसे ले रहा है ना, सो दिस इज थंब डायरेक्शन, इट विल मूव। अगर मैं ऐसे घुमाता है तो दिस विल इधर से घूमता है तो ये इट विल गो डाउन, दिस इज द थंब रूल डायरेक्शन, राइट। ये तो एक हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टली आपको डिटरमिनेंट के साथ कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ, डिटरमिनेंट को, फोर्स की इंटरेक्शन को कैसे सोल्यूशन करते हैं। इसके सिर्फ एक करना है, जब आई कैप निकालना है तो आई कैप को इसको ऐसे करना पड़ेगा, आई कैप, सो दिस इनटू दिस 3 into 1 minus this will be this minus 2 into -2, this will be I cap, and similarly जब J cap लेंगे तो J को भूल जाइए, J को लेंगे J को भूल जाइए, तो this will be this into this, ठीक है, this into this -2 into 2, जैसे मैथ में हमने किया हुआ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, and this is 5 into 1, so this will be whole into, this is J cap, this will be J cap plus J cap and plus K cap, K cap में K को भूल जाएंगे, so this will 5 into K cap जब लेंगे 5 into 1 minus 3 into 2, okay, 3 into 2। फिर मैं बता रहा हूँ, जब इसका आई कैप निकालना है, फॉरगेट दिस वन आई कैप, इसको भूल जाइए, देन यू मल्टीप्लाई दिस इनटू देन माइनस दिस, जब इसको लेंगे इसको भूल जाइए, देन डू दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, लाइक मैथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने देखा है क्लास 10 के अंदर, ठीक है। सो दिस विल बी द सेम, P1 क्रॉस P2 वेक्टर, इसको ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर इसमें, दिस इज आई कैप, P2 जब P1 3 minus plus 4, this is 7, then this is J, and this is -4 minus 5, and plus this will be this is 5 minus 6, okay। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये this will be multiplied with this 5 into 1 minus this into this, okay, same, right। So this is actually 7 I cap minus 9 J cap minus 1 K cap, तो ये डिटरमिनेंट के में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस सेम थिंग यू कैन डू विद योर डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इसके अगर वैल्यू ले लेंगे तो अपन उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि इसके अगर एक्चुअल कोई वैल्यू अगर ऐसा है कि भाई इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 3, 5, 7 है, 1, 2, 9 और 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल भी सकते हैं लाइक दिस कोऑर्डिनेट से। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बोलने हैं, जब हम उसके मैथ करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर कोई डाउट है यू कैन पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, थैंक यू।